Hello and very good evening, everyone. Nice to see you all after so many days. You had your exams. I hope you did well in your exams. Very good evening, everyone. Okay, so I think many people are still joining. Let's. Uh, when college will reopen, I don't have much idea. Okay, that might be in the pipeline. And our sessions for some time now, I'm very sure we are going to continue in online mode for some time. Okay. There are some disadvantages maybe in online mode, but there are many advantages also. And we are all tech people. So let us get comfortable and make use of technology also. Yes, we have just started. I think I have taken how many sessions? I have taken only 2 sessions. And now that many of you have joined the Telegram group, okay, we'll be sharing all those things with you. Okay. For that only we have created the Telegram group. Okay. So don't worry about that. Uh, you see, when it comes to learning, there is a bit of a flow and logical thinking. Okay. Logical thinking जो है ना, that's also a matter of habit. लॉजिकल थिंकिंग इज अ मैटर ऑफ हैबिट. आप मतलब ब्रेक होने से थोड़ा सा उस पर इम्पैक्ट रहता है. मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव जॉइन्ड द टेलीग्राम ग्रुप or the channel, so I think the link has been shared with you by Shilpa ma'am. Many of your friends have joined. I'm not sure I'm having the group link. Please collect it from your CR. Please collect it from your CR. Your CRs are having all the information. Okay, so let us continue with what we had done in the previous session. Okay. So we had discussed some basic concepts like types of numbers. Okay. Like what is a natural number, what are integers. Okay. And rational numbers, irrational numbers, how irrational numbers are non-terminating and non-recurring decimals, how non-terminating but recurring decimals are also going to be rational numbers. Okay. And we solved some questions. Then we started with the basic concepts of factors and multiples. Then we went for HCF LCM. Okay. So HCF LCM divisibility pe hi today's session is going to be based. And I hope today I'll be able to finish some more examples and concepts. ठीक है. इसके बाद I'm going to keep a test on whatever we have done so far. ठीक है. तो एक सेशन फिर उसका डिस्कशन एंड एनालिसिस रहेगा. Then I will go for new topic. All right. So
ओके ये सब कर दिए थे. So I'll just start very softly. Please answer this question. How many numbers between 1 and 7 are multiples of 7? ये बहुत ही easy, simple and basic questions हैं. Ashish said 13. No. Yes, of course it is 14. Okay. Because 7 के multiple 7 into 1, 7 into 2. The last multiple is 7 into 14, 9800 से पहले. Okay. So let's go for the next one. How many numbers between 50 and 100 are divisible by 7? Yes, that is the correct answer, Ashish. कुछ लोग देखो गलत आंसर आ रहा है जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट देन आई मीन तभी तो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस. देयर आर टू वेज टू गो अबाउट इट. ठीक है, तो द फर्स्ट वे वुड बी, there are two ways to go about it. You see, 50 से 100 के बीच में 7 के कितने मल्टीपल्स हैं? What is the first multiple of 7 which is after 50? It is 56, 63 ऐसे करके the last one is 98. अब देखो 7 into 8 से शुरू हुआ, then 7 into 9 and the last one is 7 into 14, right? तो 8 से लेके 8 9 ऐसे करके up to 12, up to 14. 8 से 14 how many numbers? The answer is 14 minus 8, that is 6. Okay, उसमें एक +1 करना है. ठीक है, +1 क्यों करना है? Akash is saying, can we use the AP formula here? We can use the AP formula here. That will be more complicated. ये ज्यादा easy है. ठीक है, वन टेक्निक आई गिव यू. 7 into 8 से शुरू हुआ, 7 into 14 पे खत्म हुआ. 8 to 14 इंक्लूडिंग बोथ विल बी 7 नंबर्स. 14 minus 8 is 6 plus 1. या फिर आप ऐसे सोचो, yes Pratyush, I would recommend that is also a good way to look at it. 1 to 100 में आप देखो कितने मल्टीपल्स हैं 7 के? 14 है. उसमें से आप देखो 1 to 49 में कितने मल्टीपल्स हैं? 7 है. तो 50 to 100 में कितने होंगे? 14 minus 7, that is going to be 7, isn't it? You can divide by 7 and also get the answer. Okay, you can divide by 7 and also get the answer. Sometime soon I'll be taking a session on calendars जिसमें बहुत सारा 4 में and 7 में डिवीजन रहेगा, उसमें इसका एप्लीकेशन होगा. ठीक है, anyways that was a basic situation, so let us move ahead and go for the next question. So how many numbers between 20 and 100 are divisible by both 2 and 3? 13 is the correct answer. ठीक है, so you can see divisible by both 2 and 3 means divisible by 6. So ये range में the first multiple ये range में is going to be, the first multiple is 6 into 4 and the last one is 6 into 16. तो 4 से 16 minus 4 is 12 plus 1 is 13. ठीक है, okay, and you can also do this.
यू कैन ऑल्सो डू दिस 1 से 100 में कितने 6 के मल्टीपल्स हैं? 16 है। उसमें से 1 to 20 में कितने हैं? 1 to 20 एक्चुअली 19 में कितने हैं? देयर आर 3। सो डेफिनेटली 20 to 100 में कितने होंगे? 16 minus 3, that is equal to 13. ठीक है? And as one of your friends suggested, 20 to 80 is a gap of 20 to 100 is a gap of 80. In 80 consecutive numbers, 80 divided by 6, that will be 13 multiples of 6. Okay? ठीक है? Let's move ahead. Now let's answer this. So how many numbers between 50 and 90 which are divisible by 4, which are multiples of 4 but not multiples of 5? 8 is the correct answer. Yes, many people are giving 8. अभी तो बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, तो इतना जल्दी मैसेजेस पास हो रहा है, किसका सही किसका गलत. I mean, I'm not able to. Of course, these are very basic and simple questions. Most of you are giving correct answers. That is 8. तो अब देखो 50 to 19 में 4 की कितने मल्टीपल्स हैं? फर्स्ट मल्टीपल इज 4 into first multiple is 4 into 13, and the last multiple is 4 into 22. So 13 से 22, how many numbers? These are 10 numbers. तो ये रेंज में 4 के 10 मल्टीपल्स हैं. ठीक है? 4 के 10 मल्टीपल्स हैं, बट दे शुड नॉट बी मल्टीपल्स ऑफ 5. तो आप देखो ऑलरेडी 4 का मल्टीपल है, अब उसमें बाई चांस 5 का भी मल्टीपल होगा तो वो 20 का मल्टीपल होगा. तो अभी इनमें से किसको हटाना है? जो 20 का मल्टीपल होगा. 50 से 90 के बीच में 20 के कितने मल्टीपल्स हैं? देयर आर 2 मल्टीपल्स. 20 into 3 60, 20 into 4 80. बिल्कुल सही. तो वो 10 में से 2 निकल जाएगा. द करेक्ट आंसर इज 8, विच मोस्ट ऑफ यू आंसर्ड. वेरी नाइस. ओके, अभी ऐसे नहीं कि मैं इजी क्वेश्चंस हमेशा देता रहूंगा. ठीक है? I'll give you easy questions, moderate questions, difficult questions, all kinds of questions. ठीक है? तो but of course I will definitely make sure no stone is left unturned. Yes. What is the HCF of these numbers? Most of you are again giving the correct answers. The answer is 2 to the power 3 or 8. आप देखो, I mean, any number can be expressed in terms of its prime factors in exponential form. ठीक है? और बाई चांस नंबर ये फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है. यस सुरुचि, अभी आई मीन वेरी क्विकली वी आर गोइंग फॉर न्यू क्वेश्चंस. ओके, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड हुआ था, बीच में गैप हो गया तो मैं थोड़ा सा इसको लेके वार्म अप कर रहा हूँ. आई मीन very soon we'll be discussing new questions, okay, which is the real agenda for today. तो इसके लिए क्या करना है? You see the prime factors involved are, you can see 2 3 7 5 यही है. तो HCF के लिए you need to choose those prime factors which are common to all the numbers. सारे नंबर्स में कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है? एक ही कॉमन है, दैट इज 2. और इसका कौन सा पावर लेना है? इसका लोएस्ट पावर लेना है. लोएस्ट पावर 2 का कौन सा था? यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4. द लोएस्ट वन इज 3. सो द आंसर इज 2 to the power 3. तो HCF में वो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे जो सब में कॉमन है, और पावर्स कौन से रहने वाले हैं? द लोएस्ट ऑफ द पावर्स. ठीक है? लेट्स मूव ऑन.
Now, tell me what will be the LCM of these numbers? No. Some of you are writing the correct answers. Some of you are giving wrong answers. 2 का power तो 5 रहेगा, but that is not going to be the LCM. Yes. मुस्कान 5 भी एक है. Ankit, I think your answer is correct. Saurabh, your answer is correct. Ipsita, yes. Now I'm getting the correct answers. Kakon, okay. Now I'm getting the correct answers. आप देखो, सब कुछ बचपन में किए थे, अभी शायद दिमाग में ना हो, तभी मैं रिमाइंड करवा रहा हूं. ठीक है. सो एलसीएम में आप देखो, एलसीएम में सारे प्राइम फैक्टर्स रहेंगे. और प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे आपको? जितने भी नंबर हैं, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स? 2, 3, 7, 5, यही है. So the LCM will have all these prime factors. LCM will definitely have 2, 3, 5 and 7 also. Just give me a second. Yes, Vivek, that is the thing. तो अभी इनके पावर्स कौन कौन से रहेंगे? द हाईएस्ट ऑफ द पावर्स. ऑलराइट. सो 2 के जितने पावर्स हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? इट इज 2 to the power 5. 3 जहां जहां भी है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? इट इज 6. दो जगह पे 3 to the power 4, 3 to the power 6. तो 5 कितने जगह पे? 5 दो जगह पे, एक जगह पे पावर 4 है, एक जगह में पावर 2 है. तो एलसीएम में पावर क्या रहेगा? द हाईएस्ट वन, दैट इज 4. 7 भी दो जगह पे है, 7 to the power 2, 7 to the power 4. तो एलसीएम में पावर कौन सा रहेगा? 7 to the power 4. Please see the logic. What is the logic? Suppose I am asking you 2, 4, 8. या फिर 2 to the power 1, 2 to the power 2 and 2 to the power 3. इनका HCF कितना है और LCM कितना है? You see HCF is 2, which is 2 to the power 1. LCM 16 नहीं है. LCM is 2 to the power 3 only. Okay. LCM is 8, which is 2 to the power 3. ठीक है. So 2 to the power 1 is a factor of 2 to the power 2 and 2 to the power 3 also. Similarly, 2 to the power 3 is a multiple of 2 to the power 1, 2 to the power 2. No, Akash, I am so sorry. वो थोड़ा सा गलत होके वो 4 दिख रहा है. वो 2 to the power, वो 2 to the power 2 था second वाला. This was 2 to the power 2. Okay. That should not create a confusion. All right then. So this was another concept, basic concept. Now let us solve another question. इसमें से कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? वैष्णवी, आशीष, स्मिता, अंकित, सुरुचि. यस 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 यस. अभी बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स आने लगे हैं. सौरभ, रीचा, यस, करेक्ट आंसर्स. वेदांत, इतने सारे नंबर्स नहीं हैं. ठीक है. 161 इज नॉट ए प्राइम नंबर. ठीक है. ये आई थिंक डिस्कस किए थे. ठीक है. 161, वैसे मैंने बताया था टेक्निक क्या है. To test whether a number is a prime number or not, you just need to do divisibility test with prime factors up to the square root of the number. All right.
तो ये डिस्कशन हो गया था. 163 was the only prime number. All right. ठीक है. I mean, this was already discussed. So आगे बढ़ते हैं. Express 120 in terms of its prime factors. क्या होने वाला है? That is the correct answer का कौन? ठीक है. अब देखो, मतलब ये मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि छोटे छोटे नंबर्स में भी आप स्कूल के बच्चों के जैसे 2 3 ऐसे डिवाइड करके लिखो. ठीक है. इट शुड काउंट यू. 120 क्या है? 120 is 15 into 8. 15 8s are 120. 8 यानी 2 to the power 3. 15 is 3 into 5. All right. So this definitely is 2 to the power 3 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1. All right. So let us go for the next question. Let us go for the next question. The number 120 has how many factors, including 1 and 120? Akanksha, that is the correct answer. Animesh, correct answer. 5 6 ये सब wrong answers हैं. I think ये मैंने explain किया था. सादिक correct answer. सौरभ correct. Jyotish correct answer. Arpita correct answer. You see, I'm getting many wrong answers. Okay. All right then. मैंने आपको क्या बताया था? Let me remind you. मैंने आपको बताया था कि any number, let's say n, can be expressed only in terms of its prime factors, like x to the power a into y to the power b into z to the power c. And total number of factors कितने होंगे? Total number of factors that will include 1 and the number itself. ये कितना होता है? x y z पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है. This is a plus 1 into b plus 1 into c plus 1. इतने होते हैं total number of factors. ठीक है. ये आपके सामने लिखा था 2 to the power 3 है. So 3 plus 1 4 आएगा उसके लिए. Into 3 to the power 1 है उसके लिए 1 plus 1 2. 5 to the power 1 है उसके लिए भी 1 plus 1 2. So 4 into 2 into 2, there will be a total of 16 factors. Okay. In fact, let me tell you, any factor, I mean, this is a combination formula. All of you are engineers, you know permutation combination well. Of course, time आने पे permutation combination हम लोग अच्छे से करेंगे फिर से. ठीक है. अभी आप देखो ऐसा क्यों है. Any factor you can think of is basically इसमें से कोई एक into इसमें से कोई एक into इसमें से कोई एक. ठीक है. Any factor is a combination of one from here and one from here. ठीक है. That is why there are 4 into 2 into 2. There are 16 factors. Got it? इसको डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में.
Shall I move forward confidently? Shall I move forward confidently? Okay, okay. ठीक है, ठीक है. अभी आने वाले हैं नए एंड डिफरेंट सिचुएशंस. पहले और कुछ बेसिक्स कर देते हैं. Of course, you can answer this very easily. How many numbers between 1 and 100 are divisible by 8? बिल्कुल सही. You already know there are going to be 12 numbers. All are multiples of 8. ठीक है. So they are numbers like, okay. Because अभी जो करने जा रहे हैं आगे उसके लिए, I mean you need to understand this. 8, 16, 24, 32, and the last one will be 96. All right. बिल्कुल सही. 8 into 1, 8 into 2, last one is 8 into 12. Okay, next question. How many numbers between 1 and 100 are there which when divided by 8 leave a remainder of 2? What are these numbers? 1 से 100 के बीच में कितने नंबर्स हैं जिनको 8 में डिवाइड करने से 2 रिमाइंडर आता है? Okay, some students are waiting. वेटिंग रूम तो मैंने डिसेबल किया हुआ था. Well, some of you have answered correctly. Some of you have given wrong answers. ठीक है. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है देख लो. व्हाट इज द फर्स्ट नंबर यू कैन थिंक ऑफ जिसको 8 में डिवाइड करने से 2 रिमाइंडर आएगा? व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? द फर्स्ट नंबर इज, okay, some are saying 2 would be acceptable. It is actually 10. Technically it is 10. Okay, the next one is 18, then 26, 34, and the last such number will be 98. Okay. सुकुमार, रीजन 2 को नहीं काउंट करते हैं बिकॉज 2 is 8 into 0 into 2, 8 into 0 plus 2. ठीक है. So normally divisibility is by natural numbers. वैसे तो 2 को 8 में डिवाइड करने से 2 ही रिमाइंडर है. दैट इज करेक्ट. ठीक है. बट 2 को नहीं लिया जाता है. ठीक है. ठीक है. डेफिनेटली 2 को 8 में डिवाइड करने से 2 रिमाइंडर है. 2 को 8 में डिवाइड करने से 2 रिमाइंडर है. ठीक है. But when somebody asks you what is the smallest number, if you divide by 8, remainder is 2, the answer is not 2, it is 10. Okay, because 2 is 8 into 0 plus 2, 10 is 8 into 1 plus 2. 8 into 1 plus 2 को माना जाएगा because divisibility का ये जो concept है, this is around natural numbers. Okay, तो आप देखो जितने 8 के multiples है ना, they are of the form 8n.
और जितने रिमाइंडर्स 2 देंगे they have the form 8n plus 2. All right, answer is 12. ओके, सो ये नंबर्स कौन से फॉर्म में रहेंगे? मुस्कान, you divide by 8, remainder should be 2. 10, you divide by 8, remainder is 2. 18, you divide by 8, 8 2s are 16, remainder is 2. Okay, no, these are fundamental things. शॉर्टकट्स तो बताने वाला हूं जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए, ठीक है? These are fundamental things. Let's move ahead. तो जो 8 के मल्टीपल्स है या फिर डिविजिबल बाय 8 है वो 8n होंगे. 8 के मल्टीपल्स जो 2 रिमाइंडर देंगे they must be of the form 8n plus 2. Okay, so let us move on and answer a few more simple questions, basic questions. A number when divided by 171 leaves a remainder of 23 and a quotient of 18. If the same number is divided by 19, what will be the remainder and what will be the quotient? First write the remainder, then write the quotient. When the number is divided by 171, the remainder is 23 and the quotient is 18. So if the same number will be divided by 19, what will be the remainder and what will be the quotient? Kushal is saying remainder will be 4. Aditya is also saying remainder 4. Akanksha said 163, 8. Akanksha, the remainder is not going to be 8. Asis, your answer is correct. So Dibya, your answer for the remainder is correct. Many people have given correct answer for the remainder. Saubhagya, your answer is also correct. Bilkul sahi. Dibyasha, 4 is definitely going to be the remainder. Ashutosh, yes, your answer is correct. Ankita, your answer is correct. समरजित थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. दिव्याशा, your quotient is correct now. Chitra, your answer is correct. Omkar, yes. Okay, now I have started getting the correct answers. Okay, and many of you, have given the correct answers also. Yes, you see, when the number is divided by 171, the remainder is 23, quotient is 18. What is the relationship that we have? Dividend is divisor into quotient plus remainder. So what must be the number? Here 171 is the divisor, quotient is 18, remainder is 23. All right. So definitely the number is, the number is 171 into 18 प्लस 23. अभी इसको अगर हम 19 में डिवाइड करेंगे ना तो आप देखो क्या होने वाला है. ठीक है, so you see what is the first thing that is going to happen. You can see 171 as a multiple of 9. It is 19 into 9 into 18 plus 23 you can take as 19 plus 4.
this you are going to divide by 19. So you see ऊपर वाला number is 19 into 9 into 18 हो गया 162 and this 19 is 19 into 1 plus 4 divided by 19. So it is 19 into 163 plus 4. अब इस नंबर को 19 में डिवाइड करने से क्या होने वाला है? Quotient is going to be 163 and remainder is going to be 4. All right. So many of you have given the correct answer. That is very good. These are fundamental things. ये complete करके आगे और भी बहुत चीज हम लोग करने वाले हैं. But this is a must know for everyone. अब देखो मैं अभी आपको बहुत सारा टेस्ट देने वाला हूँ. इस साल तो ट्रेनिंग का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहेगा. Okay, we are going to conduct lots of online tests for you. You are going to have a lot of practice. ठीक है? So when you are going for those kinds of practice, I want to make sure you are going and attempting those tests with all your basics intact. Okay. Okay. Here is another question. Let's go for this one. Find the smallest number that must be subtracted from 1000 to make it divisible by 31. Also find the smallest number that must be added to 1000 to make it divisible by 31. First answer the number to be subtracted, then answer the number to be added. Yes, Sunny, that is the correct answer. Try to give both the answers एक साथ में. अभिषेक थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया मुझे लग रहा है. Shafin, Asutosh is the first one to have given both the answers correct. Ashish, add wala. No, Chitra, why we will do these things? Rizwan, correct answer. Nishant, correct answer. Vishwajit, correct answer. Aditya, correct answer. Shifin, correct answer. Divya Prakash, no, wrong हो गया. Kajal, correct answer. Chitra, correct answer. Chandrakant, correct. Aditya, करेक्ट. अंशुमन थोड़ा सा गलत हो गया. अध्यासा थोड़ा सही हुआ, थोड़ा गलत हुआ. ओके. ओके. ओके देवाशीष. Many of you have given the correct answers. ठीक है. So find the smallest number that must be subtracted from 1000 to make it divisible by 31. Okay. अब देखो when we are dividing by 31, please realize every 31st number is divisible by 31. The multiples of 31 are the numbers which are divisible by 31. All right. 1000 is not one such numbers. So 1000 को वैसे if we divide by 31, क्या होने वाला है? You see 31 threes are going to be 93, then 7, 0, 70. 31 twos are 62, so we are left with 8. 8 is the remainder. All right. ठीक है. You can do this, but मैं normally better techniques use करने में believe करता हूँ. ठीक है. The moment you write, you are taking more time. मुझे पता है 31 square is 961. ठीक है. 31 square is 961. तो plus 31 करने से 961 plus 31, 992 is divisible by 1000.
1000 से कितना सब्ट्रैक्ट करने से 992 होने वाला है. This 8 is to be subtracted. All right. Then the next number that will be divisible by 31 is 992 plus 31. How much is that? That is 1023. Okay. Now 1000 में कितना ऐड करने से 1023 होने वाला है? The answer is 23. Okay. Or you could get it from here. We have to subtract 8 or we have to add 31 minus 8, which is 23. 8 सब्ट्रैक्ट करने से होगा डिविजिबल 31 में, 23 ऐड करने से भी होगा डिविजिबल 31 में. These are the smallest numbers to be subtracted and added. Of course, there will be other numbers that can be subtracted and added. तो भी 31 में divisible होगा, but they will not be the smallest numbers. Okay. So let us move forward. वैष्णवी, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो 1000 को 31 में डिवाइड किया तो 8 रिमाइंडर आया, तो 8 सब्ट्रैक्ट करने से बाकी 31 में डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, या फिर वी आर डिवाइडिंग बाय 31, 8 रिमाइंडर आया, 31 माइनस 8 23 अगर ऐड करेंगे ना तब भी वो डिविजिबल हो जाएगा. ओके, सो इट्स अ वेरी बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. इस पे मैं और भी बोलने वाला हूं थोड़ी देर में. ठीक है, तो लेट अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस. Let me just check. Let me just check how many of you are able to answer this now. Find the least number which when divided by 17 leaves a remainder of 4, but when divided by 7 leaves a remainder of 5. सबसे छोटा कौन सा नंबर है जिसको 17 में डिवाइड करने से 4 रिमाइंडर आएगा और 7 में डिवाइड करने से 5 रिमाइंडर आएगा? किरण, विल इट बी 13? कंडीशंस आपके सामने हैं. It has to be one number. आकांक्षा, आपने 26 बताया, 26 को 7 में डिवाइड करने से 5 रिमाइंडर तो आ जाएगा. 17 में डिवाइड करने से 4 रिमाइंडर आ रहे हैं क्या? I have got many wrong suggestions. I am yet to get the correct suggestion. Okay. और एक चीज मैं हमेशा आपसे बोलना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स में you are supposed to think intelligently. So if you are making a mistake, जो कि हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, मिस्टेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इफ यू मेक ए मिस्टेक, अभिषेक आप थोड़ा चेक कर लो अपना आंसर. कंडीशंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू. एक ही नंबर है, आप उसको 17 में डिवाइड करोगे, okay. I have already got 2 correct answers from your friends Rahul and Divya. Okay, they have given correct answers and some more correct answers I am getting now. Rizwan has given correct answer. Okay, and somebody else also gave the correct answer. 17 में रिमाइंडर आएगा 4 और 7 में रिमाइंडर आएगा 5. ठीक है, somebody you see gave this suggestion
जैसे मैं बता रहा हूं अंशुमन, ये दो अलग अलग नंबर नहीं, एक ही नंबर होगा जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, और साथ में इट हैज टू बी द लीस्ट सच नंबर। ओके, जैसे मैं बताना चाहूंगा अभी, जैसे रीचा सजेस्टेड 123, तो 123 को लेके चेक कर लेते हैं, 17 में डिवाइड करेंगे ना, तो 17 7 119, रिमाइंडर आ गया 4, ठीक है। बट आप देखो 123 को अगर 7 में डिवाइड करेंगे, ओके, अंकित सेनापति या राहुल, ओके, Ritesh, you have got the correct answer now. Yes, yes. Saswat, correct answer. चलो आप देखो, now I have got nearly 15-20 correct answers. ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाता है। 123 को 7 में डिवाइड करने से ना नहीं होने वाला, बिकॉज 17 7 119, 4 रिमाइंडर यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, पीयूष मैंने एक्सप्लेन तो किया ही नहीं है मैंने एक्सप्लेन किया नहीं है। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गो फॉर दिस, बट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको कुछ और टाइप के कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, विच आर सपोज टू बी ऑन द इजियर साइड। ये थोड़ा उससे ऊपर लेवल का है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी at least 20 of you have given me correct answers now. ठीक है, तो अभी कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ आंसर दिस वन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 2, 3 or 5 leaves a remainder of 1 in each case. सबसे छोटा कौन सा नंबर है जिसको आप चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 5 में डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 इन ईच केस। विनायक विल डिस्कस द प्रीवियस क्वेश्चन आफ्टर सम टाइम। I have got many wrong answers. Now I have started getting the correct answers. Sujit, Rizwan, Simran, Srinivas, correct answers. Shreya, correct answer. Aryan, correct answer. Divya, correct answer. Rohit, correct answer. Okay, many of you have given correct answers. Anjali, कुछ कुछ wrong answers भी आ रहे हैं। ठीक है, of course the correct answer is 31. ओके, क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिसको 2 में डिवाइड करने से रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 1, 3 में भी डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 1, 5 में डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 1। ओके, ठीक है, सो व्हेन डिफरेंट डिवाइजर्स आर लीविंग ए कॉमन रिमाइंडर, आप सोचो ये पहले कब होता है? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 235? टेल मी, वी आर डिवाइडिंग बाय 235, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 235? एलसीएम ऑफ 235 इज 2 into 3 into 5 30, क्योंकि कुछ तो कॉमन नहीं है उनमें। एलसीएम इज 30। 30 is the LCM of 235. What does it mean? What it means is 30 is the smallest number which is completely divisible by 2, 3 and also 5. 30 सबसे छोटा नंबर है जिसको चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 5 में, किसी में भी डिवाइड कर लो, क्या होगा? ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी कोई रिमाइंडर इसमें से नहीं आने वाला है। रिमाइंडर विल बी 0 इन ईच केस। अब 1 रिमाइंडर चाहिए तो क्या करने से आ जाएगा 1 रिमाइंडर? एक +1 करके अगर डिवाइड करेंगे ना, तो 30 पूरा डिवाइड हो गया 235 में, ये 1 बच जाएगा रिमाइंडर इन ईच केस। ऑलराइट, 30 is the smallest number which is divisible by 2, 3 and 5.
30 is the smallest number, which if you divide by 2, 3 or 5, you'll get a remainder of 0 in each case. All right, plus 1 करके divide करेंगे तो remainder is going to be 1 in each case. So if different numbers are leaving the same remainder, what will be the smallest number to satisfy the conditions? It is going to be LCM plus the common remainder. It is going to be LCM plus common remainder. यहाँ पे LCM था 30 और common remainder था 1. So answer was 30 plus 1, 31. Okay. ठीक है. Of course many of you answered correctly. जिन्होंने wrong answer दिया था, I hope उनको अभी concept पता चल गया. Alright then. तो अभी आगे बढ़ते हैं और मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. ठीक है, इस पे थोड़ा और कॉन्सेप्ट ऐड कर रहा हूं. ठीक है. नो, लास्ट क्वेश्चन में ओमकार कॉमन रिमाइंडर था क्या? नहीं था. लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंट रिमाइंडर्स थे. ठीक है, अभी आप देखो, आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन. ये थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन दिया. Find the smallest number which when divided by 2, 3 or 5 leaves a remainder of 1 in each case. But when divided by 11 leaves no remainder. इसके साथ में एक कंडीशन और जोड़ दिया मैंने. ओके, आदित्य वेरी गुड. शाश्वत वेरी गुड. अभिषेक रॉन्ग हो गया. पॉल जोसेफ रॉन्ग हो गया. त्रिविक्रम रॉन्ग हो गया. रिजवान करेक्ट आंसर. निखिल रॉन्ग आंसर. श्रेया रॉन्ग आंसर. कुशल रॉन्ग. चिरंजित रॉन्ग. सुश्री, I think that answer was correct. Saurabh Naik, correct answer. Abhishek, wrong answer. Diksha, wrong answer. Piyush, wrong answer. Rudra, correct answer. Rohit, wrong answer. Asis, wrong answer. ठीक है. Okay, so once again, I got many correct answers and many wrong answers also. Chitra, Divya, correct answers. Vinayak, correct answer. Sai, correct answer. Kakon, wrong answer. Kajal, correct answer. Sachin, correct answer. Rahul, wrong answer. Viswajit, correct answer. Piyush, now your answer is correct. ठीक है. अभी देखो सोचना कैसे है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे सोचना कैसे है. एंड आई टेल यू, मुझे पता है कि फाइनली आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे ऑप्शंस के साथ मिलने वाले हैं मोस्ट लाइकली. ठीक है, बट कुछ कुछ कंपनीज होते हैं जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस नहीं देते हैं. ठीक है, बट नॉर्मली एवरीवेयर इट इज मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. लेकिन मैं आपको अभी ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ. जब टेस्ट होगा ऑप्शंस दूंगा और भी टेक्निक्स दूंगा साथ में जो ऑप्शंस होते हैं. बट ये फंडामेंटल चीजें हैं. सो आई वांट यू टू बी गुड विद फंडामेंटल. तो जानबूझ के मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया है. ओके, तो यहाँ पे सोचना कैसा है. अब देखो, ऑलवेज I mean, and one thing, many of you give me correct answers, many of you give me wrong answers also. Wrong answer तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे कंडीशन सामने रखे. आप जो भी वैल्यू बता रहे हो, जैसे किसी ने कहा 33, बहुत जन ने कहा 33. अब देखो 33 को 3 में डिवाइड करने से 1 रिमाइंडर आएगा क्या? 2 में 1 रिमाइंडर आ रहा है, बट 3 में 1 रिमाइंडर नहीं आएगा, 5 में 1 रिमाइंडर नहीं आएगा. There are 5 conditions given here.
2 में 1 रिमाइंडर चाहिए, 3 में 1 रिमाइंडर चाहिए, 5 में 1 रिमाइंडर चाहिए, 11 में डिविजिबल चाहिए और स्मॉलेस्ट भी चाहिए। ठीक है, तो कैसे सोचना है? देखो, somebody could think this way कि 11 का मल्टीपल्स को लेके चेक करता हूं। नो, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज यू सी जो पहले 3 कंडीशंस है ना, ये एक साथ में आ जाएंगे। ऑलराइट, अब उसके साथ में नेक्स्ट कंडीशन को ऐड करते हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 2 3 5 में 1 रिमाइंडर आएगा। ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ऐसा सबसे छोटा नंबर है 31। Now the point is 31 is the smallest number to give remainder of 1 in each case if we divide by 2 3 or 5, but it is not the smallest such number. Can you tell me 31 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर है जिसको 2 3 5 में डिवाइड करेंगे तो फिर से 1 रिमाइंडर आने वाला है? आशीष, विवेक, आदित्य, बिल्कुल सही। 31 इंटू 2 नहीं है वो, 62 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर थोड़ी आएगा। ठीक है, 31 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 61। ऑलराइट, बिल्कुल। और लॉजिक क्या है आप देख लो, डिवाइड कर रहे हैं 2 3 5 में। 2 3 5 का एलसीएम क्या है? 2 3 5 का एलसीएम है 30। दैट मीन्स 30 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 3 5। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है 30 इज द एलसीएम। 30 का कोई भी मल्टीपल लेंगे 30 इंटू एन, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 एंड 5। वो भी 2 3 5 में पूरा डिविजिबल होगा। 30 is LCM, any multiple of 30, 30n is always going to be divisible by 2 3 5। तो 30n को 2 में, 3 में, 5 में किसी में डिवाइड कर लो, रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0 इन ईच केस। ठीक है, अगर 1 रिमाइंडर चाहिए इसमें +1 कर लो तो ये 1 ही रिमाइंडर रह जाएगा, ये पूरा चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 रिमाइंडर रह जाएगा। सो यू सी एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म 30n +1 is going to satisfy these 3 conditions. Okay, smallest number is when n is 1, 31, when we put n equal to 2, 61, वो भी 11 में डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 91, वो भी 11 में डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 121, अब that is what is divisible by 11. So smallest number to satisfy all these conditions is how much? It is 121. Okay, and many of you suggested 331. 331 तो 11 में डिविजिबल नहीं होगा, तो आपने 331 सजेस्ट कैसे किया? ठीक है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं 341। अरे 341 को 3 में डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 नहीं, रिमाइंडर 2 आएगा अगर आप 341 को 3 में डिवाइड करोगे तो। ठीक है, सो आशुतोष, इफ दिस वाज नॉट ए ट्रिक, आई मीन आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहले 3 कंडीशंस है ना वो साथ में आ जाएंगे। तो 31 61 91 फिर 121। ठीक है, जो कि 11 में डिविजिबल हो गया। किरण, लास्ट पार्ट वंस मोर। सागर अवस्थी, यस, बट यहाँ पे मैंने स्प्लिट नहीं किया। अभी थोड़ी देर में और एक एग्जांपल में आपको स्प्लिट करके बता दूंगा। ठीक है, विश्वजीत, ऑप्शंस विल हेल्प यू बट समटाइम्स ऑप्शंस कुड बी ट्रिकी। ठीक है, sometimes options could be tricky, and of course when there are options and you can, I mean, answer
अब देखो इतने सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, ऑल यू नीड टू नो इज कि दीज आर गिविंग द सेम रिमाइंडर, तो ये एक साथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आपका सोचना इजी हो जाता है। 2 3 5 में 1 रिमाइंडर, तो ऐसे ही नंबर्स होंगे 30n+1, 31, 61, 91, 121। ओके। आपके फ्रेंड सागर अवस्थी ने और एक चीज बताया, ठीक है, वो क्या है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन में बताऊंगा, चलो। इसमें 30 में मल्टीप्लाई करना इजी है, दैट इज व्हाई आई मीन आई डिडंट स्प्लिट। ओके, लेट्स गो फॉर अनदर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। Find the smallest number which, when divided by 3, 4, and 5, leaves remainders of 2, 3, and 4 respectively. सबसे छोटा कौन सा नंबर है जिसको हम लोग अगर 3 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर चाहिए 2, अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 3, और अगर 5 में डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर होगा 4। आकांक्षा, 11 को 5 में डिवाइड करने से 4 रिमाइंडर आएगा क्या? सागर, दिव्या, you have already given correct answers, very good. Shreya, correct answer. शशांक, रॉन्ग आंसर। 84 को आप 4 में डिवाइड करने से 3 रिमाइंडर नहीं आएगा। सिमरन, 62, नो, 62 फॉर 3, तीनों के लिए एक ही नंबर आएगा। शाश्वत, 118 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सुकुमार, 39 भी आप गौर से देखो, 39 को 3 में डिवाइड करोगे डिविजिबल ही हो जाएगा। 69 is not correct, 341 is not correct, 29 is not correct। अब चेक कर लो। सुजित करेक्ट आंसर, शाश्वत करेक्ट आंसर। वैष्णवी, 122 को आप 5 में डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर नहीं आने वाला है। 315 को आप पंचमन 5 में डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर कभी भी नहीं आने वाला है। सुभाषिस, करेक्ट आंसर। स्मिता, 314 को आप 4 में डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बिल्कुल नहीं आने वाला है। Subhranshu, you suggested 6, 12, 20. It will not be different numbers. It will be one number only. Abhishek, you have given the correct answer. Adhyasa, wrong answer. Aditya, correct answer. Biswajit, correct answer. Of course, Sagar, you have given the correct logic also. Lokesh, correct answer. Ashmit, wrong answer. 71 को आप 5 में डिवाइड करोगे 4 रिमाइंडर नहीं आने वाला है। कुशल, करेक्ट आंसर। पॉल जोसेफ, करेक्ट आंसर। गौतम, रॉन्ग आंसर। 89 को आप 4 में डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर तो नहीं आने वाला, 1 रिमाइंडर आने वाला है, ठीक है। अब इसे करेक्ट आंसर, ओके। अभी आप देख लो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे एंड व्हाट कुड बी द ट्रिक। ओके, अब देखो मैं आपको एक अच्छा वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स, ठीक है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स? आप देख लो, वैसे तो नॉर्मली आई मीन वी यूज रिमाइंडर्स, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव रिमाइंडर्स, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे यूजफुल होगा वो भी आप थोड़ा सा देख लो। यस रिजवान, करेक्ट आंसर। अश्विनी, करेक्ट आंसर। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, आप सोचो 74, सपोज हमने डिवाइड किया 74 को 10 में, तो क्या होने वाला है? आई रिमेम्बर एक बार बहुत पहले की बात है, डिविजिबिलिटी में ही मैंने किससे पूछा 74 को 10 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बोला 7.4 होगा।
तो when आई मीन वो फिर सोच ही नहीं पाया कि 74 10 में डिविजिबल नहीं, बोला सर क्या बोल रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इज अराउंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो 10 में डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट विल बी 7, 10 7s are 70, रिमाइंडर इज 4। ऑलराइट, इसका मतलब 74 10 में डिविजिबल नहीं है। ऑलराइट, 74 10 में डिविजिबल नहीं है, क्योंकि डिविजिबल होने से रिमाइंडर कितना आता, 0 आता। 4 रिमाइंडर आया तो डिविजिबल नहीं है। नाउ इफ आई आस्क यू 74 के साथ क्या करने से 10 में डिविजिबल होगा, आई ऑलरेडी आस्क्ड अ सिमिलर क्वेश्चन, इसी पॉइंट से था। 74 से मिनिमम कितना सब्ट्रैक्ट करने से इट इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 10, इट इज 4। 74 से ये अगर 4 हटा लेंगे ना, 4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, रेस्ट इज डिविजिबल बाय 10, ठीक है। 74 से मिनिमम नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 4, दैट इज व्हाई वी कॉल द रिमाइंडर इज 4। इंस्टेड सपोज आई आस्क यू 74 में मिनिमम कितना ऐड करने से रिजल्ट विल बी डिविजिबल बाय 10। If we add 6, then also it is going to be divisible by 10. Okay, so you see we can say the remainder is 4, or we can also say the remainder is -6. We can say the remainder is 4, we can also say the remainder is -6. Okay, फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप देखो क्या कॉन्सेप्ट है। अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि 74 इज 70 प्लस 4, तो अगर 10 में डिवाइड किया, 70 पूरा डिवाइड हो गया, कितना बच गया 4, सो रिमाइंडर इज 4। ऑलराइट, कोई ऐसे सोच सकता है 74 इज 80 माइनस 6। नाउ 10 में डिवाइड करेंगे तो 80 इज डिविजिबल बाय 10, कितना बच गया, -6 बच गया। सो रिमाइंडर इज 4 और रिमाइंडर इज -6, ठीक है। आर यू एबल टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स? ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर वेयर कैन इट हेल्प अस? फिर से आप देखो 74 को 10 में डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 4, तो 74 से अगर 4 निकाल लेंगे देन द रिजल्ट विल बी डिविजिबल बाय 10, या फिर 74 में अगर 6 ऐड करेंगे देन ऑल्सो रिजल्ट विल बी डिविजिबल बाय 10। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, इससे बेटर मैं दिखाने का सोच भी नहीं सकता। You can see the remainder is +4 or the remainder is -6. Alright, तो कहां पे हेल्प कर सकता है? आप देखो इन जनरल इट इज इजियर टू डील विथ अ बिगर नंबर और अ स्मॉलर नंबर। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, सपोज कोई नंबर को 15 में डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 10, हम रिमाइंडर 10 भी ले सकते हैं या फिर माइनस कितना ले सकते हैं, -5 भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई नंबर को 14 में डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 13, तो रिमाइंडर 13 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। कोई नंबर को 17 में डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 15, नंबर को 17 में डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 15, तो इफ पॉजिटिव रिमाइंडर इज 15, वी आर डिवाइडिंग बाय 17, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नेगेटिव रिमाइंडर? नेगेटिव रिमाइंडर विल बी -2। 17 में डिवाइड किया, पॉजिटिव रिमाइंडर इज 15, तो नेगेटिव रिमाइंडर इज -2। फिर से और एक एग्जांपल सो दैट यू आर वेरी क्लियर। लेट्स से 14 में डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 11, 14 में डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 11, वी कैन से रिमाइंडर इज 11 और रिमाइंडर इज हाउ मच, -3।
ऑलराइट, सिंपली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर देखो आप लोग क्या था, ओके। सो यहां पर क्या था, आप देखो 3 में डिवाइड करने से 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो नंबर 3 में डिविजिबल नहीं है। क्या करने से 3 में डिविजिबल होगा, या तो ये 2 नंबर से हटा लो या फिर कितना ऐड कर लो, 1 ऐड कर लो, तब भी 3 में डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली नंबर 4 में भी डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर इज कमिंग 3, तो नंबर के साथ क्या करने से 4 में डिविजिबल होगा, या तो नंबर से 3 सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर कितना ऐड कर लो, 1 ऐड कर लो। 5 में रिमाइंडर इज 4, तो नंबर 5 में डिविजिबल नहीं है, क्या करने से नंबर 5 में डिविजिबल होगा, या तो नंबर से 4 सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर 1 ऐड कर लो, ठीक है। सो इन ऑल 3 केसेस व्हाट डू वी सी, नंबर में 1 ऐड कर लेंगे तो नंबर इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 3, नंबर इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 4, नंबर इज आल्सो गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 5। और जैसे कि मैंने नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बताया, 3 में रिमाइंडर इज 2, वी कैन से रिमाइंडर इज 2 और -1। 4 में रिमाइंडर इज 3, सो 4 में रिमाइंडर इज 3, सो वी कैन से रिमाइंडर इज 3, और 4 में रिमाइंडर इज 3 और वी कैन से रिमाइंडर इज -1 अगेन। 5 में रिमाइंडर इज 4 और वी कैन से रिमाइंडर इज -1 अगेन, ऑलराइट। सो अभी भी वही कॉन्सेप्ट है, तीनों में सेम रिमाइंडर आया, पॉजिटिव रिमाइंडर्स आर डिफरेंट बट नेगेटिव रिमाइंडर्स इज कॉमन। सो अभी भी वही कॉन्सेप्ट है, एलसीएम प्लस कॉमन रिमाइंडर। So LCM 3, we are dividing by 3, 4, 5. So LCM is 60 and common remainder कितना है, -1. So what is the answer? 60 plus -1, that will be 60 minus 1, that will be 59. Okay, of course many of you have answered correctly. ठीक है, आंसर इज 59 क्योंकि 3, 4, 5 का एलसीएम इज 60। सम ऑफ यू सेड 29, आप खुद सोच लो 29 को 4 में डिवाइड करने से 3 रिमाइंडर आएगा क्या, 4 7 जा 28, 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। कैन वी सब्ट्रैक्ट द नंबर विथ रिमाइंडर, आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द एलसीएम टू गेट द आंसर, नो। दिव्या, एलसीएम प्लस कॉमन रिमाइंडर आपको बताया था मैंने, मैं स्टेप बाय स्टेप ही जा रहा हूं। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप ही जा रहा हूं, बिकॉज इससे पहले हम पॉजिटिव रिमाइंडर कॉमन वाला सॉल्व करके आए। 2, 3, 5 में 1 रिमाइंडर होगा 31, ठीक है, एंड 31, 61, 91 वो सब भी 2, 3, 5 में 1 रिमाइंडर देंगे, स्मॉलेस्ट इज 31, ठीक है। सो आई मीन अभी तो आप ये देख लो कि डिफरेंट नंबर्स आर गिविंग द सेम रिमाइंडर, smallest number to satisfy will be LCM plus the common remainder, okay। तो अभी आगे बढ़ते हैं, and if you have understood whatever we have discussed so far, the next question I'm definitely expecting the correct answers.
साथ में और थोड़ा कंडीशन जोड़ दिया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 3 4 5 remainders are 1 2 and 3 respectively, but if we divide by 17 there will be no remainder. Susri, no. Avash, सौरभ, आप देखो 119 को 5 में डिवाइड करने से 3 रिमाइंडर आएगा क्या? 119 इज नॉट द करेक्ट आंसर. कंडीशंस आपके सामने रखे हैं. Samyak was the first one to give the correct answer, and then Rizwan has also given the correct answer. 68 तो नहीं है, 68 7 में तो 17 में डिविजिबल तो है, लेकिन 68 को 4 में डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 तो नहीं आने वाला. 68 तो पूरा ही 4 में डिविजिबल है. 76 तो 17 में डिविजिबल नहीं है. प्रीतम, करेक्ट आंसर. Sonali, 58 is not divisible. Subham Sanket Raut, correct answer. Pratyush, correct answer. Shreya, correct answer. Saurabh, correct answer. Sylvie, again wrong answer. आप थोड़ा सा आंसर चेक कर लो. स्वरूप, करेक्ट आंसर. दिवांशु, करेक्ट आंसर. अनमोल, 58 17 में कहाँ डिविजिबल है? Ankita, I don't know where from you are giving 986. Susri also suggested 986. Suruchi, correct answer. रोहित, हम 4 में डिवाइड करेंगे ना, 2 रिमाइंडर चाहिए. नो. ऋत्विक, 4 में डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर चाहिए. वहां से मुझे लग रहा है कि वहां से मुझे लग रहा है कि नंबर जो है वो इवन नंबर ही होगा. ऑड नंबर तो हो ही नहीं सकता. Can there be an odd number if you divide by 4 will give you a remainder of 2? 1002 भी नहीं. और एक चीज आप देख लो, नंबर को 5 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 3. नंबर को 5 में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 3. इसका मतलब जो भी आंसर होगा, यूनिट्स प्लेस विल बी इधर 3 और 8. रिचा, अभिषेक, अनुराग, वैष्णवी, नाउ आई एम गेटिंग मेनी करेक्ट आंसर्स. ठीक है. आशीष, yes, yes. सिद्धार्थ, करेक्ट आंसर. ओके, ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन नाउ, एंड congratulations to those who have answered it correctly. They have understood the concept. Okay, I know कि ये कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है, और जिनका नहीं है, I'm trying to explain it here.
ये संकेत, दैट इज द करेक्ट आंसर। आप देखो इतने सारे कंडीशन है, चार चार कंडीशन सामने दिख रहे हैं। क्या 3 में 1 रिमाइंडर चाहिए, 4 में 2 रिमाइंडर चाहिए, 5 में 3 रिमाइंडर चाहिए और 17 में कोई भी रिमाइंडर नहीं चाहिए। और ये चार कंडीशंस के साथ में और एक पांचवा कंडीशन भी है कि ये चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला पोशली, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये राहुल, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये चार नंबर को सेटिस्फाई करने वाला ये सबसे छोटा नंबर भी होना चाहिए। तो कैसे जाएंगे, कहीं से तो पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। आई मीन स्टार्टिंग पॉइंट। कोई सोच सकता है जिसको कम पता है वो बोलेगा चलो 17 के मल्टीपल्स को लेकर ट्राई करके देखते हैं। नो, उससे मच बेटर होगा जिसको ये दिख गया कि ये जो तीन कंडीशंस हैं ये एक साथ में आ जाएंगे। क्योंकि वैसे तो दिख रहा है डिफरेंट रिमाइंडर्स है, बट नेगेटिव रिमाइंडर सेम है तो कॉमन रिमाइंडर वाले में आ जाएगा। 3 is living 1, we can say remainder is 1 or -2. 4 is giving a remainder of 2, remainder we can say is 2 or -2. 5 is living 3, remainder is 3 or -2. सो ये तीन कंडीशंस जो हैं, पहले तीन 3 4 5 में 1 2 3 एक साथ में आ जाएंगे। ओके, अब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है? एलसीएम प्लस कॉमन रिमाइंडर। एलसीएम इज 60 प्लस कॉमन रिमाइंडर इज -2, दैट इज 60 -2, दैट इज 58। 58 is the smallest number to satisfy the first three conditions. But 58 के साथ प्रॉब्लम क्या है? 17 में तो डिविजिबल नहीं है। तो क्या करेंगे? अब देखो 58 is the smallest number to satisfy the first three conditions, but it is not the only number. 58 के आगे और बहुत नंबर्स रहने वाले हैं जो पहले तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। कैन यू टेल मी 58 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा जो पहले तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा? यस, द आंसर इज 118। कुछ लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, 116 सोच लेते हैं। 116 नहीं होगा, 118 होगा। राहुल कुमार, दैट इज द करेक्ट लॉजिक, ठीक है। आप सोचो 58 क्यों हुआ? हम लोग 3 4 5 में डिवाइड कर रहे हैं। 3 4 5 का एलसीएम है 60, यानी 60 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है 3 4 5 में। 60 का कोई भी मल्टीपल होगा ना, 60n, वो भी 3 4 5 में पूरा डिविजिबल होगा। 60n को अगर 3 4 5 में डिवाइड करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं निकलने वाला है, ठीक है, पूरा ही डिविजिबल हो जाएगा। इसमें अगर एक -2 करके डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर इज गोइंग टू बी -2 इन ईच केस। इसका मतलब 3 में 3 -2 1, 4 में 4 -2 2 और 5 में 5 -2 3, ऐसे रिमाइंडर्स आएंगे, ठीक है। तो any number which is of the form 60n -2 will satisfy the first three conditions. Smallest number is when n is 1, 60 into 1 60 -2 58. Next number will be 60 into 2 120 -2, that is 118। अब वो भी 17 में डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्या है? 178, वो भी 17 में डिविजिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 60 into 4 240 -2 238, and 238 is what is divisible by 17। आप देखो 17 10s are 170, 17 4s are 68, 170 plus 68 हो गया 238। This is 17 into 14, answer is 238। Anshuman, because the remainder is -2 in each case। 3 में 1, remainder is 1 or -2। 4 में positive remainder is 2, negative remainder is -2। 5 में positive remainder is 3, so negative remainder is again -2। Okay, so यहाँ पे I think it was Samar who suggested कि split करना, ठीक है। तो split भी कैसे करके सोचते हैं वो यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है।
बाकी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अब देखो अपना काम क्या था यहाँ पे, कोई भी नंबर 60n-2 फॉर्म का होगा, पहले 3 कंडीशंस को तो सेटिस्फाई करेगा। ऑलराइट, अभी हमें डिसाइड करना था what is the smallest number, यानी what is the smallest value of n for which 60n-2 is divisible by 17। ऑलराइट, अभी हमने क्या किया, ऊपर जो नंबर्स लगे यहाँ पर डायरेक्ट n 1 2 3 4 डाल के देख लिया एंड काम बन गया। अब 60 में मल्टीप्लाई करना इज नॉट अ बिग थिंग बिकॉज वी आर नॉट रियली मल्टीप्लाइंग विद 60 बट वी आर मल्टीप्लाइंग विद 6, ठीक है। बट इन सम सिचुएशंस the general principle of shortcuts is it is easier to deal with smaller numbers than bigger numbers। तो is it necessary कि 60n में n के बदले में कुछ वैल्यूज डालेंगे? नो, in fact we can split it and deal with smaller values। कैसे? जैसे आप देखो 74 को 10 में डिवाइड करने से 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो सपोज किसी को लगा 74 बड़ा नंबर है, उसको 10 में डिवाइड करने से क्या होगा, मुझे देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, 10 में ही डिवाइड कर रहे हैं ना, मुझे पता है 50 जो है वो ऑलरेडी 10 में डिविजिबल है, तो मैं काम करता हूँ 74 में से पहले 50 हटा लेता हूँ, बाकी जितना बचा उसको 10 में डिवाइड करके देखता हूँ, जितना होगा दैट विल बी द आंसर। करेक्ट, 74 से 50 हटा दिया, 24 बचा, 24 को 10 में डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर। ऑलराइट, कोई बोलेगा नहीं मुझे पता है 60 इज डिविजिबल बाय 10 ऑलरेडी, 74 से 60 हटा लेता हूँ, ठीक है 60 हटा लो, बाकी बचा 14, 14 को भी 10 से डिवाइड करने से वही 4 रिमाइंडर बचेगा। So we need not bother about 60n here. Can we split it in 2 parts where we know already one part is divisible by 7? We can do that. 60n hai. Now what is the largest multiple of 17 which is less than 60? What is the largest multiple? Yes Sagar, that is 51, ठीक है, बिल्कुल सही। तो what I can always do is I can split 60n into 51n plus 9n minus 2. So this much is divisible by 17. Now no need to bother about 51n. Why? n चाहे जो भी हो, 51 is divisible by 17, 51n has to be divisible by 17. So all we need to bother about is this part, 9n minus 2. Now think for which smallest value of n 9n minus 2 is divisible by 2, divisible by 17. n 1 डालने से 9 minus 2 7 नहीं हुआ, 2 डालने से 9 2s are 18 minus 2 16 नहीं हुआ, n 3 डालने से 9 3s are 27 minus 2 25 नहीं हुआ, n 4 डालने से ही 9 into 4 36 minus 2 34, तब हुआ 17 में divisible. So n is 4 and our answer is 60n minus 2. So 60 into 4 minus 2. So 60 into 4 minus 2 is what is 238. Okay. So ऐसे split करते हैं. Okay. So Saurabh, I mean, we'll discuss those in the next session. All right. So आज के लिए इतना ही, and whatever we have done so far, मैं इसको शेयर कर दूंगा वो टेलीग्राम वाले ग्रुप में, ठीक है। तो बाकी सी एनीथिंग दैट इज लेफ्ट आउट आई विल टेक केयर इन द नेक्स्ट सेशन, डोंट वरी। अब तो क्लासेस शुरू हो गया, एवरी वीक आई विल ट्राई टू टेक एटलीस्ट 2 सेशंस, 1 तो मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो चलो एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव ए गुड नाइट। डाउट क्लियरिंग का कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो करेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू सुस्मिता।
थैंक यू एवरीवन. ओके टुमारो. यस यस यस, एक ही स्लाइड है, मैं इसको शेयर कर लूंगा पूरा. ओके तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो टुमारो क्लास होगा कि टेस्ट होगा. मैं थोड़ा अभिषेक सर से कांटेक्ट करके, ठीक है. अभी कम्युनिकेशन के लिए हमने ग्रुप्स बना लिया. देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप एंड देयर इज अ ग्रुप विद द सीआरस. ठीक है तो मैं अभी थोड़ी देर में कम्युनिकेट कर देता हूँ कल के क्लास के लिए. ओके चलो, thank you everyone. Bye bye. See you in the next class and have a happy weekend. Bye bye and good night.